So next practical is from group B, that is MongoDB. We'll start with a MongoDB. It's introduction, installation, and basic CRUD operation. For installation, I have already shared videos on your WhatsApp group. Also, in a Google Classroom, if you just go with a Google Classroom, here I have shared some videos. And if you are a mobile user, if you don't have a machine or laptop, how to run the MongoDB queries, that video also I have just shared there. So in a practical video link, find out group B assignment number 1. So here you will find out the 4 different videos I have uploaded. So very first is how to find out your operating system is of 32-bit or 64-bit, because MongoDB installation is different for 32-bit machine and 64-bit machine. It is only for Windows. If you are working on a Ubuntu, it's only a one small instruction or command you have to type out, that's it. For Windows, find out first your version. If it is a 32-bit version, so here this is an video for 32-bit, like how to install MongoDB in Windows 32-bit processor. If your machine is 64-bit, the another video I have just, it is not made by me, I have just taken it from YouTube, which I found a good one and just shared here. Again, if you don't have a machine or laptop, or you don't want to install a MongoDB, but still you want to run a MongoDB command from your machine or from your mobile. So this is a small video where I have given like 2 different simulators which are available. The link of that 2 simulator is already added here. Just click on any of the simulator, and how to run that query on this simulator, that video is also added here. So I don't think any issue you will find out. If you are a mobile user, whenever you are running any of the queries, just take a screenshot, add that screenshot in one of your note, make its PDF and just upload it. So that is a good one. So the half part from our first practical of group B, that is installation, I have already shared the video of everything about installation. Now we'll come up with actual introduction of MongoDB. So before starting with MongoDB, just tell me in your theory, did sir has started NoSQL or MongoDB? No, no, ma'am. Nothing. Okay, you don't know anything about NoSQL. That means. Okay. So before just starting MongoDB concept, I will give you a small idea about like what is NoSQL exactly. MongoDB is a part of NoSQL. So here like you will find, we have to study like 2 things. Up till now we have studied all about SQL. So SQL, you know, it is an RDBMS. Okay, so the RDBMS long form is Relational Database Management System, where you create a table. Okay, अगर मैंने आपको बोला कि आपको कोई रो इंसर्ट करनी है किसी टेबल में, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? टेबल को क्रिएट करना पड़ता है. स्टूडेंट्स प्लीज गिव द आंसर, नहीं तो फिर आज का सेशन मेरे को मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपको एसक्यूएल कितना समझ में आया है उसके ऊपर ही मैं आपको बता सकती हूँ कि नो एसक्यूएल क्या होता है. ओके, एसक्यूएल के अंदर मतलब जब हम माई एसक्यूएल यूज करते हैं, तो एसक्यूएल के हम जो आरडीबीएमएस यूज कर रहे हैं वो कौन सा है? वी आर यूजिंग माई एसक्यूएल. ओके, अब मुझे बताओ MySQL में अगर आपको कोई टेबल में अगर कुछ डेटा इंसर्ट करना है, तो सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी? आपको टेबल क्रिएट करना पड़ेगा. टेबल क्रिएट करने के लिए आप डायरेक्टली सिर्फ इतना लिखते हो क्या, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, दैट्स इट, या फिर उसके आगे और क्या क्या चीजें ऐड करनी पड़ती है हमको? कॉलम नेम, कॉलम नेम और साइज, उसका डेटा टाइप एंड उसकी साइज. अगर मैंने ये चीजें स्किप कर दी और सिर्फ लिखा क्रिएट टेबल स्टूड, तो आपका टेबल क्रिएट होगा क्या? नो मैम.
No, ma'am. No, it's not possible because in RDBMS और in SQL आपको जब भी कुछ टेबल क्रिएट करना है तो आपको उसका स्ट्रक्चर बताना पड़ता है, आपको उसका स्कीमा बताना पड़ता है. ओके, सो द मेन थिंग हियर इज स्कीमा, जिसको आप स्कीमा मतलब आप उसको हम ये भी बोलते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल. तो जब तक आप किसी भी टेबल का स्कीमा या स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं करते हो तब तक आप उसके अंदर डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते हो. वेरी फर्स्ट थिंग, ओके, नोट डाउन कर लो कि एसक्यूएल में सबसे पहले इट इज अ स्कीमा बेस एंड इट इज अ स्ट्रक्चर बेस. स्ट्रक्चर मतलब हमको पता है कि अगर मैंने कोई स्टूड टेबल क्रिएट किया है तो मैं पहले ही बताऊंगी कि स्टूड टेबल में 3 कॉलम्स है, उसका सीक्वेंस क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है, उसकी साइज क्या है. तो whenever you are going to insert a record in that table, आपको वो सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा. जैसे मैंने बोल दिया कि स्टूड टेबल में 3 कॉलम्स है, तो ये टेबल अगर क्रिएट करते वक्त मैंने पहला कॉलम बनाया है रोल नंबर, ओके, डेटा टाइप डाला है इंटीजर. सेकेंड कॉलम बना है नेम, डेटा टाइप मैंने डाल दिया है varchar, उसकी साइज प्रोवाइड कर दी है. थर्ड कॉलम मैंने बनाया एड्रेस with data type varchar and I have given the size. अगर ऐसा कोई हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया है तो इस टेबल के अंदर स्टूड टेबल के अंदर जब मैं कभी भी इंसर्ट की क्वेरी लिखूंगी तो इंसर्ट की क्वेरी हमेशा कैसी रहेगी मेरी, इंसर्ट इनटू स्टूड वैल्यूज. ओके, अब अगर मैंने पहले नेम दे दिया और बाद में मैंने रोल नंबर की वैल्यू डाली तो चलेगा क्या, इंसर्ट होगा क्या रिकॉर्ड ऐसा? नो मैम. नहीं होगा. यू कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस क्योंकि आपने इस टेबल का स्ट्रक्चर बताया है कि फर्स्ट वैल्यू इंटीजर टाइप की रहेगी जिसकी वैल्यू रोल नंबर होगी, सेकेंड टाइप का जो डेटा है वो नेम के लिए होगा, varchar होगा, थर्ड विल बी एड्रेस. तो आप इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस. अगेन मैंने इसके आगे और एक कॉलम ऐड कर दिया, ओके, मैंने उसका मेल एड्रेस डाल दिया. सो इज इट पॉसिबल? कोई एक नई वैल्यू मैं मन से ऐड कर सकती हूँ क्या? जैसे मैंने ईमेल एड्रेस, यहाँ पे स्टूड टेबल में मैंने 3 कॉलम्स डिफाइन किए, रोल नंबर, नेम एंड एड्रेस. और जब मैं वैल्यू इंसर्ट कर रही हूँ स्टूड टेबल में, मैं 4 वैल्यूज इंसर्ट कर रही हूँ. फर्स्ट वैल्यू भावना, सेकेंड रोल नंबर, थर्ड वैल्यू एंड फोर्थ वैल्यू. तो ये 4 वैल्यू एक्सेप्ट करेगा क्या एसक्यूएल? No, नो ma'am. मैम. It is not going to accept it because it is a purely strictly sticking to the structure. जो स्ट्रक्चर आपने पहले डिफाइन किया है वही स्ट्रक्चर में आपको डेटा को इंसर्ट करना पड़ता है, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट. ओके, सो दिस इज अ ट्रेडिशनल थिंग विच इज कमिंग इन एसक्यूएल. अगेन इसके बाद इट हैव सम लिमिटेशन ऑफ साइज ऑल्सो. साइज मतलब आप कितने रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हो. कैन एनीबडी टेल मी कि अगर आप MySQL या Oracle SQL यूज कर रहे हो तो किसी भी टेबल में आप मैक्सिमम कितने रोज या कितने रिकॉर्ड्स आप स्टोर कर सकते हो? व्हाट इज द लिमिटेशन? 10,000, 1 लाख, 10 लाख, कितना है लिमिटेशन? कभी सर्च किया है? किया है सर्च कभी? यस और नो? नो मैम. No, ma'am. सो जस्ट सर्च इट, गूगल इट कि अगर आप एसक्यूएल का डेटाबेस यूज कर रहे हो, इट कैन बी आइदर ओरेकल, MySQL, PostgreSQL, एनी वन, तो हाउ मच साइज ऑफ डेटा इट कैन स्टोर. ओके, तो उसका एक लिमिटेशन होता है कि एक पर्टिकुलर साइज के बाद आपका एसक्यूएल प्रॉपरली वर्क नहीं करता है. ओके, again it works in a distributed manner. If your data is in a, it's not in a centralized manner, it is in a distributed manner. डेटा स्कैटर्ड है, अलग अलग मशीन्स पे स्टोर किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्टिल इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू अ प्रॉपर आउटपुट. ओके, तो ऐसे कुछ ड्रॉबैक्स है एसक्यूएल के. और आजकल हम लोग जो ऐप यूज कर रहे हैं, ओके, so what apps, social media apps that you are using nowadays? Just tell me the name of apps. Social media app. Facebook, Very good. Facebook. Okay. Insta. Instagram, Insta. Okay. Snapchat. Snapchat. Okay.
Twitter. WhatsApp, Twitter, okay, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. okay, Hike. LinkedIn, Hike, number of things are there, okay. कोई मुझे बताएगा क्या what kind of database they are using? क्या हम नॉर्मल RDBMS का, क्योंकि इसमें भी डेटा होता है ना, आपका फेसबुक पे आपने जो डेटा डाला है, आपकी इमेज डाली है, कुछ मैसेज डाला है, किसी को लाइक का सिंबल डाला है, एनीथिंग, आप 3 साल पहले का भी डेटा देख सकते हो, राइट? Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. sir. यू आर एबल टू सी, मतलब अगर कोई भी डेटा अगर हम पहले वाला देख सकते हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं क्या है, इट इज स्टोर समवेयर, स्टोर किया है उसने. Yes, ma'am. Yes. Yes, they have to store it. Unless and unless they store somewhere, they cannot show you the data of history or backdated. तो हमको तो 10 साल पहले का भी डेटा दिखता है, 5 years पहले का भी दिखता है, किसी और के लिए हमने अगर कुछ कमेंट डाले वो भी दिखता है. तो इसका मतलब दे आर यूजिंग सम काइंड ऑफ डेटाबेस. लेकिन कभी आपको लगता है कि इसका कोई स्ट्रक्चर फिक्स है? फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इसका कोई स्ट्रक्चर है क्या? कोई टेबल है क्या? कोई सीक्वेंस है? कोई स्कीमा है क्या? आप कुछ भी डाल सकते हो ना. पहले अगर आपको लगा अरे मॉर्निंग में उठ के आज मुझे व्हाट्सएप पे, ऐसा बोलता है कि व्हाट्सएप नहीं नहीं, मॉर्निंग में आज आपको सिर्फ टेक्स्ट ही डालना है. फर्स्ट मैसेज टेक्स्ट होना चाहिए, सेकेंड मैसेज इमेज होना चाहिए, थर्ड मैसेज लाइक इमेज होगा, फिर फोर्थ मैसेज सिंबल होगा. ऐसा कोई सीक्वेंस है क्या उसका? No, ma'am. No. नहीं, कोई भी आप लाइक एनी नेटवर्किंग साइट यू चेक, सोशल मीडिया वेबसाइट आप ले लो, उस पर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है. आपको जहाँ चाहिए आप टेक्स्ट डाल सकते हो. बीच में आपको लगा कि लाइक का सिंबल डालना है, कुछ GIF डालना है, वीडियो डालना है, कभी इमेज डालना है, आप कुछ भी कभी भी कैसे भी डाल सकते हो. देयर इज नो फिक्स स्कीमा, देयर इज नो फिक्स स्ट्रक्चर. इसका मतलब ये सब एप्स जो है, ये जितने भी एप्स है, so what is common in all these apps? They are not using any schema, so that means there is no schema. Then there is no structure at all whenever you are storing a data or giving a data. There is no size limitation. आपको कभी ऐसा बोला है क्या फेसबुक ने, अरे आपने बहुत ज्यादा वीडियोस डाल दिए हैं आज एक दिन में, या फिर आप पिछले 5 साल से सबसे ज्यादा डेटा डाले हो, नाउ योर लिमिटेशन इज ओवर, you don't have a size now, you don't have a space, you cannot give any comment, you cannot upload any image or video. ऐसा कभी है क्या? कुछ लिमिटेशन है क्या इन लोगों का? No, ma'am. There is no size limitation, right? So exactly, right, exactly RDBMS से पूरा पूरा अपोजिट है ये. ओके, इसमें जो चीज आती है उससे पूरा अपोजिट है. दैट मीन्स अगर मुझे इस ऐप का कोई भी डेटा अगर मुझे स्टोर करना है, तो मैं ये डेटा स्टोर करने के लिए RDBMS नहीं यूज कर सकती हूँ. ओके, आई कैन नॉट यूज द RDBMS, so I require some different thing. I cannot use SQL. तो ये जितना भी प्रॉब्लम है ये सॉल्व करने के लिए जो नया डेटाबेस मार्केट में आया है, दैट इज NoSQL. सो द डिफरेंस बिटवीन SQL एंड NoSQL इज वन थिंग. SQL के अंदर स्कीमा होता है, NoSQL इज स्कीमालेस. इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर कर सकते हो, सीक्वेंस में, स्ट्रक्चर्ड में. हियर यू कैन स्टोर अ डेटा, you don't require to follow any sequence, you can store a data which does not have any structure, unstructured. इसको नो स्ट्रक्चर के बजाय एक प्रॉपर कीवर्ड है अनस्ट्रक्चर्ड, या फिर जिसको हम बोलते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा. So it is using that. Third, it have some size limitation, but NoSQL does not have any size limitation. Okay, so this is a basic difference. और कौन से टाइप के एप्लीकेशंस के लिए आपको NoSQL यूज करना है वो आपको समझ में आया होगा. और इसके अलावा apart from that, like
if your database is in the form of distributed type, सेंट्रलाइज नहीं है, एक लोकेशन पे स्टोर नहीं है, स्कैटर्ड है, जैसे गूगल, गूगल का डेटा सिर्फ एक ही सर्वर पे स्टोर होगा या बहुत सारी जगह पे स्टोर होगा? गूगल और बड़े बड़े जितने भी आप ये ले लो, फेसबुक ले लो, जिसके पास बहुत ह्यूज डेटा है, उनके नंबर ऑफ सर्वर्स आर देयर, दे हैव अ डिफरेंट, बहुत सारे सर्वर होते हैं जिसमें डेटा अलग अलग सर्वर पे अलग अलग लोकेशन पे स्टोर किया जाता है. डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में होता है. तो जब ये टाइप का अगर चीज है तुम लोगों का, ओके, तो तभी तुमको NoSQL यूज करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट, one more thing when you want to think for NoSQL is when the data is in the form of big data. Okay, can anybody tell me, have you heard about the name as big data? Yes, ma'am. क्या पता है बिग डेटा के बारे में? कुछ भी जो पता है, सुना है, जस्ट टेल में. मैम शायद हडूप लैंग्वेज यूज करते हैं बिग डेटा. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. बिग डेटा को प्रोसेस करने के लिए हडूप लैंग्वेज यूज किया जाता है. बट बिग डेटा यानी क्या होता है, कुछ पता है? मैम इट्स अ लार्ज वॉल्यूम. यस, नाम ही क्या है, बिग डेटा. जब डेटा का वॉल्यूम बहुत ह्यूज है, इन अ टेराबाइट, पेटाबाइट, जेटाबाइट, यू कैन नॉट इमेजिन कि वन डे में, एवरी वन डे, फेसबुक हर दिन कितना डेटा जनरेट करता होगा. सोचो आप, फेसबुक पे कितने सारे लोग कनेक्टेड, एवरी डे कुछ तो डालते हैं. इफ यू इमेजिन वन डे में कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, इट्स कैन बी इन अ टेराबाइट और पेटाबाइट, हर दिन इतना डेटा जनरेट होता है. सो व्हेन योर डेटा जनरेशन स्पीड इज वेरी फास्ट and every day it is generating a huge volume of data, and still you require to analyze that data, you want to process that data. process मतलब क्या, आपको दिखता है ना कितने लोगों ने लाइक किया, आपने कुछ इमेज डाला, आपको क्विक रियल टाइम, जैसे ही किसी ने लाइक डाला आपका काउंट यहाँ पे इंक्रीज होता है. अरे देखते हो, अरे 40 लोगों ने लाइक किया, अरे रात तक 100 लोगों ने लाइक किया. सो रियल टाइम कितना भी डेटा यूज ऐसे हर एक के लिए होता है. सो फेसबुक इज वेरी फास्टर और ट्विटर इज अगेन वेरी फास्टर. व्हाट्सएप पे आप चेक करो, आपको तुरंत दिखता है कितने लोगों के मैसेज आए, कितने लोगों के मैसेज आपने रीड नहीं किए हैं, लाइक वाइज. So everywhere when the real time data generation is very huge, the speed of data generation is again very fast, and the type of data which is coming is a heterogeneous data. ओके, डेटा के जो टाइप्स है वो हेट्रोजेनियस. हेट्रोजेनियस मतलब सिर्फ टेक्सचुअल डेटा नहीं आ रहा है, टेक्सचुअल डेटा, इमेज का डेटा, वीडियो का डेटा, सिंबल का डेटा, अलग अलग टाइप का डेटा है. सो इट्स अ हेट्रोजेनियस डेटा. ऐसे टाइप का अगर डेटा है, यानी 3 क्वालिटी है बिग डेटा के. 1, जिसमें डेटा की साइज बहुत ह्यूज होती है, ओके, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, प्लस डेटा जनरेशन का जो स्पीड है, द स्पीड ऑफ डेटा जनरेशन इज वेरी फास्ट. Second one, and third, the data which is coming, the format of data is like heterogeneous, मीन्स अलग अलग टाइप का डेटा आता है. अगर ये तीनों क्वालिटीज है तो उस टाइप ऑफ डेटा को हम बोलते हैं बिग डेटा. सो इफ यू हैव एनी वेबसाइट और एनी ऐप वेयर such kind of data is generated or coming, again you have to go with a NoSQL. okay, तो आजकल के मैक्सिमम एप्स, मैक्सिमम हर चीज जो है, दे आर मूविंग टूवर्ड्स ऑल दिस थिंग्स. इसके लिए हमारा जो SQL लैंग्वेज है उसको इतना अच्छे से सपोर्ट नहीं कर सकता. इसके लिए मार्केट में आया है NoSQL. आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड NoSQL क्या है और कब यूज करना है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, और थ्योरी में आपको इसके ऊपर चैप्टर है और डिटेल में आपको बताएंगे सर, तब और अच्छे से समझ में आएगा. बट एटलीस्ट इसका आप स्क्रीनशॉट भी निकाल के अगर रख दोगे जो मैंने अभी बताया, तो इजी हो जाएगा आपको याद रखने के लिए कि एसक्यूएल में क्या चीजें होती है, NoSQL में क्या होता है, कब NoSQL यूज करना है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ NoSQL. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ ये अभी मैं इसको निकाल दिया. नाउ जब मैं बोल रही हूँ कि अभी हमको यूज करना है NoSQL, सो NoSQL में डेटा आप 4 डिफरेंट टाइप में स्टोर कर सकते हो. पहला होता है की वैल्यू पेयर.
Okay, it have a 4 types of storing a data in a NoSQL. One is key value, second is document stored, third one is column store, and last one is graph database. Okay, so these are the more 4 different types of NoSQL databases, जिसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल में, दैट इज ऑफ डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड. ओके, सो NoSQL का हम कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं? अ डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड NoSQL, जिसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स है. लाइक जैसे SQL में हम बोलते हैं ना, SQL में Oracle SQL है, MySQL है, IBM DB2 है, Postgres SQL है. तो SQL के बहुत सारे वेंडर्स है जिन्होंने SQL के बहुत अलग अलग सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं. सो लाइकवाइज इफ यू आर गोइंग फॉर अ NoSQL एंड इन दैट NoSQL यू वांट टू गो विद अ डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड NoSQL, तो बहुत सारे अलग अलग एप्स या डेटाबेसेस के ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें फर्स्ट है MongoDB, सेकंड है CouchDB, देन Cassandra. ओके, सो ये बहुत सारे उसके अलग अलग एप्लीकेशंस है, सॉफ्टवेयर है जो विच आर कमिंग अंडर डॉक्यूमेंट, जिसमें से हमको जो पढ़ना है प्रैक्टिकल में दैट इज MongoDB. ओके, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो MongoDB के बारे में शॉर्ट में अगर आपको मैं बताऊं, MongoDB is a NoSQL type of database and it is coming under a document oriented family. Okay with this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इंट्रोडक्शन समझ में आया? ओके, MongoDB क्या है? NoSQL डेटा टाइप है. अगर आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, स्कीमालेस डेटा है, तो आपको जाना है, और इसमें डेटा स्टोर होता है डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड फॉर्म में, डॉक्यूमेंट के जैसा स्टोर होता है, लेकिन स्टिल इट इज यूजिंग अ की वैल्यू आल्सो. अभी हम इसका एक जो मैंने पीपीटी बनाया है, जस्ट उसको मैं जस्ट शेयर करते हैं हम लोग, और उसमें से जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बताती हूँ. ओके, सो जो डिफरेंस है SQL एंड NoSQL के बीच में, दैट ऑलरेडी वी हैव सीन, लाइक व्हाट डिफरेंसेस वी हैव इन दिस. ओके, SQL के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो भी आपको पता है. लाइक इन SQL वी आर यूजिंग DDL लैंग्वेज, DML लैंग्वेज, DCL लैंग्वेज लाइकवाइज. तो इसमें ऐसे कुछ नहीं है. NoSQL में देयर इज नो DDL, DML, DCL. ओके, इन दैट वी आर गिविंग अ कीवर्ड एज अ CRUD. जैसे SQL में हम DDL, DML, DCL, TCL ऐसे कमांड्स को डिफरेंशिएट किया है. सो इन योर NoSQL we talk it as it are a CRUD operation, CRUD. उसका लॉन्ग फॉर्म में बाद में बताऊंगी क्या होता है. तो यहाँ पे CRUD ऑपरेशन यूज किया जाता है. अगेन इन DDL वी हैव सीन लाइक कि इसमें आप प्राइमरी की, फॉरेन की, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं. ओके, तो प्राइमरी की कंसेप्ट इज एज इट इज इन अ NoSQL. उसमें प्राइमरी की कंसेप्ट है, बट देयर इज नो फॉरेन की कंसेप्ट, बिकॉज यू कैनॉट यूज अ जॉइनिंग ऑफ टू टेबल. सबसे मेन चीज आपने SQL में पढ़ा होगा कि आप उसमें नॉर्मलाइजेशन यूज करना पड़ता है, और बहुत सारे नॉर्मलाइजेशन आपने पढ़े होंगे, 1NF, 2NF, 3NF, 4NF, BCNF, 5NF, है ना. दिस इज वेरी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. ओके, सो देयर इज नो सच कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन NoSQL. सो इट्स वेरी सिंपल. सेकेंड, अगर आपका डेटा अलग 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 टेबल में स्कैटर्ड है, ओके, तो आपको बहुत सारे टाइप्स के जॉइंस हमने पढ़े, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, फुल जॉइन, क्रॉस जॉइन, है ना. इट्स वेरी डिफिकल्ट. अगेन देयर इज नो जॉइन कंसेप्ट इज देयर इन द NoSQL और इन MongoDB. इट्स अ जॉइनलेस. ओके, जब आपको ऐसा कुछ डेटा स्टोर करना है तो आप एक डॉक्यूमेंट के अंदर दूसरा डॉक्यूमेंट एम्बेड करके हो, लेकिन आप कभी ऐसे नहीं करते कि दो अलग अलग कलेक्शन, मतलब दो अलग अलग टेबल है और उसको हमें ज्वाइन करना पड़ रहा है. नो सच थिंग्स यू रिक्वायर. ओके, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो SQL में थी वो बहुत सारी चीजें स्कीप हो गई. अगेन वेरी important property of SQL you have studied is the ACID property, है ना. Atomicity, consistency, isolation and durability. So there is no ACID property you have to use in your NoSQL. Instead there is a one theorem which is called as a CAP theorem, उसमें यूज किया जाता है, जो आप थ्योरी में डिटेल में पढ़ोगे. आई एम जस्ट गिविंग सम स्मॉलर इंट्रोडक्शन सो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंसेस है उसमें. तो NoSQL के बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी बताए, लाइक कैसेंड्रा, CouchDB, MongoDB, ये सब होता है. Hadoop एंड HBase, अगेन
mostly used or known word for NoSQL, जिसमें MapReduce, Hadoop, HBase, Hive, Mahout, ये बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी. That is also example of NoSQL databases. तो टोटल यहाँ पे मैंने एक लिंक दी है जिसमें आप टोटल 122 टाइप्स के NoSQL डेटाबेस की लिस्ट यू कैन फाइंड आउट देयर, जिसमें से हम एक छोटा सा डेटाबेस स्टडी करने वाले, दैट इज MongoDB. तो NoSQL के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि जैसे ये बिग डेटा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है. सो लाइकवाइज तो मैं जस्ट इस चीजों को स्किप करती हूँ. ओके, हियर द NoSQL एक्चुअली वर्किंग ऑन अ कैप थ्योरम, where CAP का long form है C is for consistency, A is for availability and P is for partition tolerance. Consistency मतलब जिसमें हम बोलते हैं कि इंटीग्रिटी होना चाहिए डेटा के बीच में, रियल टाइम डेटा जैसे ही यहाँ पे अपडेट होता है वैसे आपको वहां पे दिखना चाहिए. सो दैट इज कंसिस्टेंसी. अवेलेबिलिटी, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने कोई क्वेरी डाला है और आपको रिप्लाई आया नहीं नहीं सर्वर इज अंडर मेंटेनेंस और वो डेटा क्रैश हो गया है. ऐसा कभी कोई रिप्लाई नहीं आता है गूगल की तरफ से या जीमेल. आप कभी ऐसा किया है, आपने जीमेल स्टार्ट किया है, उन्होंने बोला अरे नहीं हमारा सर्वर क्रैश हो गया है, वी डोंट हैव द कॉपी ऑफ योर डेटा. ऐसा कभी कोई मेल नहीं है, सिंगल मेल, कि जो आपके मेल बॉक्स से अचानक से गायब हो गया है या फिर वो डेटा क्रैश हो गया है. नो, मीन्स ऑल योर डेटा इज अवेलेबल 24/7 फॉर यू. दैट इज अवेलेबिलिटी. एंड थर्ड वन इज पार्टीशन टॉलरेंस. पार्टीशन टॉलरेंस मतलब मैंने बताया कि NoSQL में डेटा जो होता है इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर. डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और हर एक पार्ट का जो डेटा है अलग 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 लोकेशन पे स्टोर किया जाता है. तो इसको बोलते हैं पार्टीशनिंग ऑफ डेटा. तो डेटा को भले हम पार्टीशन कर रहे हैं लेकिन जब कोई क्वेरी सेंड करता है तो क्वेरी हर लोकेशन पे रन होके आउटपुट मिलता है. सो ऐसे कभी नहीं होता है कि पार्टीशन भी किया है तो कुछ डेटा अवेलेबल है कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है. सो इट इज अ पार्टीशन टॉलरेंस. उसका डिटेल में यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, यू कैन रीड आउट एवरीथिंग. Okay, so now we'll study with NoSQL. NoSQL के जितने भी apps है all are open source. Now my question to you guys, what is meaning of open source? उससे कोई भी Yes. मैम फ्रीली अवेलेबल होता है उसका कोड. ओके, कोड अवेलेबल होता है या फिर कोड या फिर हम उसको रन कर सकते हैं, मतलब डाउनलोड करके उसको हम यूज कर सकते हैं फ्रीली हाँ, विदाउट लाइसेंस हम कॉपी, उसमें चेंजेस कर सकते हैं. है ना. देर इज टू कंसेप्ट, फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स. ओके, तो जनरली ओपन सोर्स मतलब क्या कि इट इज फ्रीली अवेलेबल, यू डोंट रिक्वायर ए लाइसेंस कॉपी, विदाउट वेस्टिंग और गिविंग एनी कॉस्ट you can use that software for your personal use or for your company purpose. तो NoSQL के जो सॉफ्टवेयर है they for that you don't have to pay a cost or very little bit cost you have to pay. So they are open source. तो हम लोगों ने 4 टाइप के ऑलरेडी देखे, मैंने 3 टाइप डाले, बट अगेन देर इज अ वन मोर स्टोर विच इज एडेड, दैट इज ग्राफ बेस. इसके लिए मैंने चारों एग्जाम्पल आपको बताया कि 4 टाइप्स के डेटाबेस होते हैं इसमें. एंड द एग्जाम्पल्स ऑलरेडी यू हैव सीन लाइक फेसबुक, गूगल, ट्विटर, बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने जो मैंने पीपीटी में डाले उससे ज्यादा एग्जाम्पल्स यू हैव सीन. ओके, सो नाउ विल गो विथ एक्चुअली MapReduce को मैं स्किप करती हूँ बिकॉज दैट इज नॉट connected with our practical. We have to concentrate mainly on MongoDB. तो हम MongoDB के लिए जाते हैं. We will study the MongoDB in a detail. So let's start with our MongoDB. So MongoDB के बहुत सारे features है, like it is a scalable, high performance, open source and document oriented database. It build for speed up. इसमें जो भी queries है या जो भी output है बहुत faster way में आपको मिलता है. Then it is very easily readability, means उसका जो query लिखने का जो syntax है it's very easy. High performance, high availability, easily scalable, and you can use aggregation queries on MongoDB. Why to use a MongoDB? तो ऑलरेडी मैंने बताया कि जब आपका डेटा
अनस्ट्रक्चर्ड या फिर स्केमालेस, बिग डेटा, ये सब चीजों में है, या फिर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा स्टोर करना है, so that time you have to go with a MongoDB where your data is stored in the form of objects. Then next is, what is RDBMS great for? So RDBMS is a replacement for web application and semi-structured content management. It is used for that. Then when you have a real-time analytics and high-speed logging of data, then you have a high scalability. ये सब चीजें अगर है तो आपको MongoDB के लिए जाना है. But it is not good for highly transactional application or the problems which requiring a structured type of data. So that time you don't need to use a MongoDB. Some are the companies which using a MongoDB in their सॉफ्टवेयर और प्रोडक्शन पर्पस. तो यहाँ पे जैसे डिज्नी हो गया, गिटहब हो गया, सोर्स फोर्स हो गया. दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस और कंपनीज हु आर यूजिंग अ MongoDB एज देयर बैकएंड टू स्टोर देयर डेटा. दीज आर सम एडवांटेजेस, लाइक इसमें जॉइंस आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, स्कीमालेस होता है, देयर इज नो जॉइंस. Data is stored in the form of JSON. JSON मतलब JavaScript Object Notation. ये हम next slide में देखेंगे क्या होता है. Then index on a attribute, not on a table. Then you can use a replication. Replication मतलब copies, जिसमें अगर आपका डेटा एक मशीन पे स्टोर है. अब देखो, आपका अगर कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप क्या करते हो, आपके मशीन के साथ साथ आपके पेन ड्राइव में स्टोर करके रखते हो, गूगल पे डाल के रखते हो, ताकि जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो हमेशा अवेलेबल रहे. तो ऐसे ही MongoDB क्या करता है, MongoDB सर्वर, वेन एवर यू स्टोर अ डेटा, इट मेक्स अ रिप्लिका, इट मेक्स अ कॉपीज ऑफ दैट. इसके लिए अगर एक मशीन क्रैश हो गया है तो भी उसकी कॉपी कहीं ना कहीं अवेलेबल रहेगी. सो इट इज कॉल्ड एज अ रिप्लिकेशन. सो इट इज हाईली अवेलेबल. कभी भी डेटा आपका हमेशा अवेलेबल रहेगा. देयर इज नो सच केस दैट योर डेटा इज नॉट अवेलेबल. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये चीज का आप स्क्रीनशॉट निकाल लो अगर आप मोबाइल पे हो तो, क्योंकि यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज इन SQL वी आर यूजिंग अ डिफरेंट कीवर्ड, बट इन MongoDB वी आर यूजिंग अ डिफरेंट कीवर्ड फॉर द सेम थिंग. जैसे SQL के अंदर, RDBMS के अंदर हम बोलते हैं डेटाबेस. सो MongoDB में भी हम उसको डेटाबेस ही बोलते हैं. बट इन SQL वी आर कॉलिंग टेबल और व्यू. जब आप टेबल बनाते हो हम बोलते हैं टेबल, बट टेबल को MongoDB में कीवर्ड है कलेक्शन. ओके, तो जब हम यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट टेबल, तो क्रिएट टेबल के बजाय हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कलेक्शन कीवर्ड, क्रिएट कलेक्शन. जब हम डेटा स्टोर कर दे, डेटा हम स्टोर कर दे रोज और कॉलम के फॉर्म में, तो रोज को इसमें रो नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट. ओके, और डॉक्यूमेंट हमेशा स्टोर होता है JSON एंड BSON के फॉर्मेट में. सो ये दो चीज आपको याद रखना है कि डेटा स्टोर होता है डॉक्यूमेंट के फॉर्म में और ये स्टोर किया जाता है कलेक्शन के अंदर, नॉट इन अ टेबल. हियर वी कॉल एज अ कॉलम. कॉलम को इसमें फील्ड बोला जाता है. इंडेक्स के लिए कीवर्ड इंडेक्स ही है. इसमें हम जॉइंस यूज करते हैं. देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ जॉइनिंग इन MongoDB. इंस्टेड ऑफ दैट a concept which is added is a embedded document. एक डॉक्यूमेंट में दूसरा डॉक्यूमेंट, दूसरे डॉक्यूमेंट में तीसरा डेटा, तीसरे में चौथा, ऐसे हम एम्बेड करते जाते हैं डॉक्यूमेंट्स को. Here there is a concept of foreign key, but here instead of foreign key they are using a keyword as a it reference. Then here keyword use is a partition. जब आप डेटा को partition करते हो, instead of partition they are using a keyword as a sharding or shard. तो इसमें से हमको सबसे इंपॉर्टेंट जो दो कीवर्ड्स लगने वाले, दैट इज अ कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट. तो जब हम बोल रहे हैं टेबल बनाना है, तो टेबल की बजाय हम यहाँ पे बोलने वाले वी हैव टू क्रिएट अ कलेक्शन. जब हम बोल रहे हैं अरे रिकॉर्ड स्टोर करो, रोज इंसर्ट करो, नो, इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग अ रो वी आर एक्चुअली इंसर्टिंग अ डॉक्यूमेंट. So I hope it is clear to you, students. Yes, ma'am. Okay. So now what exactly JSON is? JSON is a very easy for human
readable format for reading and writing of a data. So it is coming in a name value pair और key and value pair. हमेशा याद रखो JSON या फिर BSON के अंदर Okay, very sorry. In the JSON or BSON, the data is stored in the form of key and value. अभी key and value exactly क्या होता है? तो यहाँ पे अगर आप ये example देखोगे key and value के लिए, so यहाँ पे अगर हमने कोई एक टेबल क्रिएट किया, कलेक्शन क्रिएट किया है, तो इसमें की आ जाएगा. जो यहाँ पे हमेशा कोलन यूज होता है. की के कोलन के लेफ्ट में जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं इट इज अ की, एंड कोलन के राइट साइड में जो होती है ये हो गई उसकी वैल्यू. सो सेम लाइक इन योर टेबल, जैसे हम बोलते हैं अरे उस स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है, उस स्टूडेंट का नाम ABC है, तो रोल नंबर की हो गया और 1 ये हो गई उसकी वैल्यू. नेम हो गया की और उसका जो भी नाम रहेगा वो हो गया उसकी वैल्यू. सो हियर ID इज अ की और ID क्या है उस पर्टिकुलर यूजर का, तो ये हो गई उसकी वैल्यू. अभी यहाँ पे की क्या है, सिटी, और सिटी के लिए वैल्यू क्या है, नासिक. लाइकवाइज, सो हियर की इज स्टेट and value is image. Okay, now this is called as the embedded document. कि postman ये की हो गया, लेकिन की के बाद तुरंत वैल्यू नहीं आया. वैल्यू के लिए मैंने वापस कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे यूज किया है. तो हम ये बोल रहे हैं कि एक डेटा के अंदर हमने इस डेटा को क्या किया है, डिफरेंट वैल्यू में डिवाइड किया है. कि जैसे पोस्टमैन के लिए हमने 2 डेटा स्टोर करना है कि उस पोस्टमैन का नाम क्या है और उस पोस्टमैन का एड्रेस क्या है. तो पोस्टमैन इज अ मेन की, और इस मेन की को हमने 2 अलग की में डिवाइड किया है, नेम एंड एड्रेस. सो दिस इज अ वैल्यू फॉर पोस्टमैन डॉट की. सो अगर मैं बोल रही हूँ रमेश जाधव, दिस इज एन वैल्यू. इस वैल्यू का की क्या रहने वाला है, इस वैल्यू का की रहेगा पोस्टमैन डॉट नेम. पंचवटी इज अ वैल्यू, इसका की क्या रहेगा, पोस्टमैन डॉट एड्रेस. So likewise this is an key value pair data. तो likewise JSON और BSON में क्या होता है, ये टाइप का डेटा स्टोर होता है. 1 मिनट में हमारा Zoom क्लोज होगा. You again have to join to the Zoom again so we can complete this practical. जितना ये टॉपिक बचा है इसको हम अभी कंप्लीट करेंगे. So what kind of data types are given by MongoDB? तो जो भी डेटा टाइप SQL में है वो है, उसके अलावा बहुत सारे